Okay, a very good evening to one and all. We have given sufficient time. So today we are here to discuss the previous year paper of GATE Environmental Science and Engineering 2021. So this is the agenda today. And first I will discuss the aptitude question followed by each and every question of subject, right? We will be conducting a series of 3 or maximum 4 classes, and then it will be done easily, right? And same will be provided to all the gate batch people or all the other people who are there, right? So let's start without wasting any further time, because we have to discuss each and every question in detail. And in case you feel any doubt, please feel free to raise your questions in the chat box or raise hand for the voice based question. And let me tell you, scoring a 60 plus marks is not very tough in this GATE Environmental Science and Engineering. Whatever is being done in the batch, if you follow it religiously, whether in the regular classes or on the cloud, you can easily capable of scoring a 60 plus. Scoring a 60 plus will give you under 100 or under 60 rank. That is a promise, because not everyone is preparing so hard to crack it. But scoring a 60 marks is not that tough in this exam, as the paper analysis have been done by our team. So various sections which have been taught to you, if you are good enough to do them, and the syllabus is quite much overlapping also with the NTA net, if you see that. Okay, so let's start without wasting any time. So coming to the first question, which was there in the aptitude part, there were 10 questions in aptitude, comprised of small mathematics as well as English. So we will go through that first, and then followed by the subject question, whatever we can discuss in today's class, and then we will be carrying other questions in the next class. So coming to the first question, so this is the first question as on your screen. Like you can see here, the question number 1. So they are saying, if the current population of a city is 11 lakh 2,500, if it has been increasing at a rate of 5% per annum, if it is increasing at a rate of 5% per annum, data has to be what is the population 2 year ago. So they are asking 2 year before what was the population. So it's very simple. Just by applying simple formula which you might have learned in your 10th or 12th class in simple interest things, you can calculate that. So let us suppose population n years ago or 2 years ago. So if you apply that, then the simple formula you can apply, that P is equal to P naught 1 plus R by 100 raised to the power n. So this you can apply, where P is the total population, as you can see here, right? P is the total population at current or at present. P naught is the population n year before, means how many year before you want to calculate, and n is the time period, right, which is 2 year in this case, and rate is the rate of increase per year. So if you see here, at present the population is how much? 11 lakh 2,500, which is this. Rate of increase is 5% and time is 2 years. So simply by putting into this formula, if you apply P is equal to P naught 1 plus R by 100 raised to the power n, it give rise to, if you put up everything, because at present the population is this much, so I put up this much is the present population. Then if you will see P naught, we have to calculate that what was 2 year before. So simply if you will calculate, it give rise to 10 lakh, and 10 lakh is in which option? So the population from here came that 2 year before it was around 10 lakh, right? So option number C is the correct answer, as you can see here. So C is the correct answer in this case. I hope it is understood to everyone, and it's not that of typical question. If you see, I don't understand, this question is not that much tough. It is a 10th or 12th standard question. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Anyone having any doubt? If you have any doubt, feel free to ask. The class is conducted for regarding this only. If you have any doubt in the like solution or any sort of doubt. Yes, if 2 year after is asked, then you will do what? It will become what? P you have to calculate. You have to calculate P in that case. आफ्टर वाले में तो P होगा ना, फाइनल पॉपुलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, तब आप इनिशियल पुट करोगे. लेट अस सपोज आपको रिवर्स पूछते तो यहाँ पे 10 लाख देते,
कि 2 ईयर बिफोर 10 लाख थी, अब कितनी है? तो 10 लाख आप कहाँ रखोगे? पी नॉट की जगह पे। बरखा गुप्ता को क्लियर है डाउट? बरखा गुप्ता, उसके बाद इंफॉर्मेशन आपको चेंज हो जाएगी। इंफॉर्मेशन विल बी व्हाट? पी नॉट विल बी 10 लाख। एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्स करिए, क्योंकि गाइस हमें ना ये फटाफट से क्विकली फिनिश करने हैं विद इन 3 to 4 क्लासेस। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड एंड देन फर्दर 55 क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? शुड आई मूव फॉरवर्ड? जल्दी बताइए फटाफट से। चलो, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. So guys, second question is very simple. It's nothing. It's like just the application of the formula which you learn in basic mathematics in 6th, 7th class, right? If you see this question, what it says P plus Q are positive integers and P by Q plus Q by P is 3. Then find the value of P square by Q square plus Q square by P square. See, whenever you get the question like that, you should be understand that when they are asking in the square terms, so you just it have to be click your brain that it's something like we are talking about a square plus b square. So simply just take this thing which is given and square both the side. It's very simple. Just take this thing and square both the side, like here. Just need to simply apply a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Right? Very simple question. So I will take this term p by q plus q by p is equal to 3, and by squaring both sides as I have written, by squaring both the sides, right? You will square both the sides. Okay. So by squaring both the side, what will come? This is my a, this is my a, and this is my b. So a square plus b square means a square b square plus 2ab. So if you do this, then it will become p by q whole square plus q by p whole square plus 2 into p by q into q by p. So this will cancel out and 2 will remain here. On the right hand side, 3 square is 9. And if you solve this thing, simple logic, then p square plus q square by q square plus p square will come out 7. तो आप मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? ये 6th-7th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और अगर ये गेट एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में है तो इट्स अ फ्री मार्क. एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7. ये देखो, एक ऑप्शन आपका 7 आपको दिया हुआ है. सो 7 विल बी द करेक्ट आंसर. किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताइए फटाफट. गाइस बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, टाइम कंस्ट्रेन है हम लोगों के पास. वी हैव टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है? किसी को लेकिन कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछिए. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है, ऑल आवर फैकल्टी एंड टीम इज डेडिकेटेड फॉर क्लियरिफाइंग डाउट्स. ठीक है? मेरा रोल यही है, बिकॉज मुझे पता है कि सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, बट स्टिल इफ यू not recall that how to apply this, then it is a loss, right? तो आपको उस लॉस को प्रिवेंट करना है किसी भी हाल में. और इजीली मैं बता रहा हूं आपको, स्कोरिंग अ 60 प्लस इज नॉट दैट मच टफ इन दिस एग्जाम. वो आप इजीली स्कोर कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तो और भी बहुत सिंपल है. ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना. ये क्वेश्चन सेज दैट the least number of square that must be added so that the line PQ become the line of symmetry. क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो आपको ये लाइन दी गई है P to Q, how many square should be added in and around to this line so that it becomes symmetric. तो देखो, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपने कुछ नहीं करना. आपने सिंपल उसकी मिरर इमेज क्रिएट कर लेनी है कि जहां भी कोई बॉक्स है उसकी मिरर इमेज में क्या होगा. ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इमेजिनेशन का क्वेश्चन है. इसमें कुछ नहीं करना आपने, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगना. ये बिल्कुल आपका सिंपल मोस्ट कंक्लूजन है. इसमें कोई भी बिग शॉट लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. ये सिंपल एकदम इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है कि कोई भी चीज होगी उसकी सिमेट्री को आपको देखना है. तो अगर ये बीच में है, तो अगर लेट अस सपोज करो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक बॉक्स है, तो इधर भी एक बॉक्स होना चाहिए इसका सिमेट्रिक. ये जगह तो खाली है, चलो ये एक बॉक्स है तो इसका सिमेट्रिक यहाँ एक होना चाहिए. ये एक बॉक्स है, इसका सिमेट्रिक यहाँ होना चाहिए. ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसका सिमेट्रिक यहाँ होना चाहिए. वही आपको करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर. सो लेट अस सपोज करो ये डैश वाला जो हमने दिखाया हुआ है, इट शो द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड इट शो दैट PQ बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो अगर मैं पुरानी फिगर को रिट्रेस करता हूँ, इफ आई रिट्रेस द ओल्ड फिगर एंड यू सी दिस, ये हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने एक यहाँ पे लगा दिया.
ये ऑलरेडी बाहर की साइड था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक यहाँ लगा दिया, ये यहाँ था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक यहाँ, ये यहाँ खाली पड़ी थी जगह, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक इस तरफ, और बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट्री एक इस तरफ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक इस तरफ। तो आप अगर ऐसे काउंट करेंगे शेडेड वाले 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं 6 स्क्वायर इन एंड अराउंड पी एंड क्यू ऐड कर देता हूं, तो ये पी क्यू एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। आप देख सकते हैं, अब आप जब इसको डिवाइड कर रहे हैं आफ्टर एडिंग द शेडेड रीजन्स, इट has become a symmetric figure. So hence I can say that 6 squares are required. ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, ये 10th-12th के लेवल का क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट मच टफ। तो 6 स्क्वायर इज एडेड टू मेक द फिगर सिमेट्रिक। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पे 6 एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? जल्दी बताइए, फटाफट क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम ज्यादा स्मूथली आगे मूव कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें? क्विकली रिस्पॉन्ड करते रहिए चैट बॉक्स में, या रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट। जल्दी से क्विकली। चलो हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा डन है ऑलमोस्ट। तो अभी तक 6 मार्क्स आपके हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। इंग्लिश तो आप लोग सारे ही ब्रिलियंट हो, कॉन्वेंट स्कूल की सबकी एजुकेशन है मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछता है आपसे, नॉस्टैल्जिया इज टू एंटिसिपेट एज डैश टू डैश, ठीक है। तो और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेंटेन अ सिमिलर लॉजिकल रिलेशनशिप इन द अबव सेंटेंस। तो इफ आई सी दिस, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो इसमें क्या आना चाहिए, सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे नॉस्टैल्जिया क्या होता है, वो पास्ट की फीलिंग को रिवील करता है, ठीक है। वो पास्ट की फीलिंग को रिवील करता है, और जो एंटिसिपेशन है दैट इज कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको सिंपली भर देने थे, उससे आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है आराम से। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग हम देख लेते हैं। अगर आप की पॉइंट्स देखेंगे इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन आपकी आ जाएगी पास्ट एंड फ्यूचर। नॉस्टैल्जिया क्या होता है, एनीथिंग और द फीलिंग दैट हैपन इन द पास्ट। एंटिसिपेशन क्या होती है, द फैक्ट ऑफ सीइंग द समथिंग माइट हैपन इन फ्यूचर। सो वी कैन राइट नॉस्टैल्जिया इज टू एंटिसिपेशन, क्या सिमिलैरिटी बनेगी, पास्ट इज टू फ्यूचर, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, नॉस्टैल्जिया इज टू एंटिसिपेशन एज पास्ट इज टू फ्यूचर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी आपकी सी, पास्ट टू फ्यूचर वाली जो है। करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज पास्ट टू फ्यूचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए फटाफट क्विकली, जल्दी बताइए भाई, इतना टाइम नहीं लेना होता। क्विक क्विक रिस्पॉन्स करेंगे तो हम ज्यादा स्मूथ मूव कर सकेंगे ना। हमें एक 1 आवर की क्लास है अभी, उसके बाद फिर आगे की क्लासेस में फर्दर सब्जेक्ट का भी टाइम लगाना है ना। चलो, तो ये आपने इजीली यहाँ पे 8 मार्क अपना स्कोर कर लेना था, 4 मार्क्स आराम से, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब देखो आगे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पे आपसे पूछता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब ये तो आपकी सिर्फ इंग्लिश को चेक करना चाह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपने। अगर इंग्लिश को भी चेक करना चाह रहा है तो वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है देखो, 5th क्वेश्चन में कहता है आई वोक अप फ्रॉम स्लीप। अब ग्रामेटिकली आप जाओगे इसमें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आई वोक अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है। ये ग्रामेटिकली आप, आपको पता है वर्ब की फॉर्म है वेक के, वोक, वोकन, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका ठीक हो गया। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट अगर आप लोगे, आई वोक्ड अप फ्रॉम स्लीप, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हियर द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नॉट करेक्ट, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं, आई वाज वोकन अप फ्रॉम स्लीप, ये भी करेक्ट है। और जो वोकन अप है, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट खाली ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस।
Okay, guys, sorry for the interruption. So if you see here, the statement 1 and 3 only are correct. So these two statements, the first and third is the correct one. So my correct answer will be where first and third is in the option. So first and third को अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में है, which is option number B. So here B would be my correct answer. Is this clear to everyone? तो थोड़ी सी डिटेलिंग अगर आपको देखनी है, डिटेलिंग हम इसकी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो वेक है, ठीक है ना, तो वोकन होगी उसमें वर्ब की फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है ना, ठीक है, थर्ड फॉर्म जो करेक्ट है वो वोकन है, वोकन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि जो वर्ब की फॉर्म है वो करेक्ट होनी चाहिए उसमें, दैट्स व्हाई इट विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है ना। तो वोकन होगी वो रादर देन दिस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी आप 1 मार्क आराम का ले सकते थे फ्री में, बट अगर ठीक नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, उसका तो फिर कुछ कह नहीं सकते आप, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जी, इसमें फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोलता है जी, स्टेटमेंट 1 ऑल पर्पल आर ग्रीन, ठीक है जी, मान लिया। दूसरे बोलता है ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ये भी मान लिया। पहले कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम ब्लैक आर पर्पल एंड नो ब्लैक इज पर्पल, ठीक है। अब अगर मैं इसका वेन डायग्राम देखूं, ये देखो, तो दोनों में क्या होगा, अगर मैं फिगर 1 बनाऊं, ठीक है, पॉसिबल केस जो हो सकते हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कि ग्रीन के अंदर ही पर्पल और ब्लू ब्लैक है आपके, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है कि जो पर्पल है ब्लैक है वो इन्हीं का सबसेट है, ठीक है, ग्रीन का। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दैट सम पर्पल आर ब्लैक एंड सम ब्लैक आर पर्पल, ये वाला केस, ठीक है। तो ये वाली ध्यान रखनी है आपको चीजें। तो दोनों फिगर को लेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा ब्लैक नहीं है जो पर्पल है, और सम ब्लैक आर पर्पल, ठीक है। दो स्टेटमेंट हमारी, नो ब्लैक इज पर्पल एंड देन सम ब्लैक इज पर्पल, ये हमारे पास दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चॉइस बचती है आपके पास ना, ज्यादा इसमें चॉइस आपके पास बचेगी नहीं। तो पहले वाले कंक्लूजन में तो क्या है, पहले वाले में जो आपका कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, और दूसरे वाले में भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ही बच गया, ठीक है। सो या तो हमारा कंक्लूजन 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। सो करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको थोड़ा हम ब्रीफ में देख सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो क्वेश्चन है वो उतना डेप्थ में नहीं है, मतलब ये सिमिलर टू द एप्टीट्यूड बीइंग आस्क्ड इन एनटीए। तो जो लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आई हुई है ना कि मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, मतलब ये मेरे को नहीं लगता है ये गेट वाले में 60 प्लस स्कोर करना इतना मुश्किल है। इवन आई फील इट इज इजियर देन एनटीए नेट जेआरएफ, वहां पे डेप्थ ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट चाहिए, उतने टीम पढ़ा रही है पूरा, उतना अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं, तो बस आपको कवर अप पूरा करना है, इजीली यू कैन मेक 60 प्लस आउट ऑफ दैट। और नेगेटिव कम करने हैं, दो सेक्शन इसमें भी, दो तीन सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उनको आपको अच्छे से टारगेट करना है। आगे चलते हैं, हम 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसमें। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये तो सीधा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, इजीली इसको पढ़ लेते और करेक्ट कर लेते, और जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ा था उन्होंने करेक्ट भी किया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। कंप्यूटर्स आर यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मीनिंग होता है विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। दे आर यूज्ड टू इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है जी, अच्छी बात है। इन ऑलमोस्ट द फील्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो हर जगह उनका एप्लीकेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एप्लीकेशन है ना। और काफी हॉट टॉपिक भी है। आर्टिफिशियल एआई मींस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनेबल कंप्यूटर टू लर्न, गिव एनफ ट्रेनिंग डाटा फॉर ह्यूमंस, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग आवर्स कैन लीड टू हेल्थ इशू। मतलब कि पहले पार्ट में कंप्यूटर के पॉजिटिव इफेक्ट बताए, दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के हार्मफुल इफेक्ट बताए। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस कुछ फॉरवर्ड कर रहा है ये, जो आपको देखने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किए हैं इनने, जो आपको देखने हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड, मतलब यहाँ से आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लगता है यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं, कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो देखते हैं। नाउअडेज कंप्यूटर आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेस, तो ये तो मुझे ट्रू लग रहा है, क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट आपको बोली थी कि भाई एवरीवेयर, यूबिक्विटस जो था, ठीक है, यूबिक्विटस का मीनिंग था ना एवरीवेयर। तो नाउअडेज कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट
इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस। तो ये तो यूबिक्विटस के साथ जा रहा है क्योंकि यूबिक्विटस मींस एवरीवेयर। दूसरा, कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग, ये तो गलत हो गया। कंप्यूटर का तो हर जगह एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर से लेके कहीं भी आप जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई, इसको आप काट दीजिए। थर्ड कह रहा है फॉर ह्यूमंस देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। बिल्कुल ठीक बात है, जो लास्ट में बोला ना, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो ये नेगेटिव है, और हर जगह एप्लीकेशन हो रही है दैट इज पॉजिटिव, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट में आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डन विदाउट डाटा, ये तो गलत है भाई, डाटा के बिना तो एल्गोरिथम बनेगी नहीं उसके अंदर। तो इसमें दो ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू दिख रही है हमें, फर्स्ट और थर्ड, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि क्या है इसमें। तो फर्स्ट और थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है डी, फर्स्ट एंड थर्ड जहां पे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना टफ नहीं है। एप्टीट्यूड में आप इजीली आउट ऑफ 10 6 7 क्वेश्चन बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। 1 1 मार्क के क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बोलो फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बता दो, क्योंकि डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डाउट है तो गड़बड़ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो जी, आगे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे यूबिक्विटस का मीनिंग हमने आपको बताया ही है, जो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है विच वी हैव हाइलाइटेड। ये सॉल्यूशन आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा सारा। तो यूबिक्विटस मींस प्रेजेंट, अपीयरिंग एंड फाउंड एवरीवेयर, जो मैंने आपको बताया, और हेल्थ इश्यूज हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही होंगे। एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये मतलब क्या है, इसमें थोड़ी सी आपको ब्रेन अपनी अप्लाई करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, पर है बहुत सिंपल। ये आपने 10th में, इस तरह की 10th 9th में आपने बड़ी मैथमेटिक्स की है एप्टीट्यूड वाली। तो क्या कहता है, कंसिडर अ स्क्वायर शीट। कहता है जी कंसिडर अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड यूनिट 1। तो मतलब एक स्क्वायर है आपके पास, जो कि जिसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी डायमेंशन है 1 यूनिट ईच। मान लो मैंने ऐसा ले लिया, तो 1 यूनिट मेरी ईच इसकी डायमेंशन है। यहाँ पे भी 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर मान लो। चलो, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 1 है सारे, ठीक है। अब ये कहता है आपसे कि 1 यूनिट ईच है इसकी डायमेंशन। इन द फर्स्ट स्टेप इट इज कट अलोंग द मेन डायगोनल टू गेट टू ट्राइंगल्स। पहली बार मैंने क्या किया, मैंने इसको इस डायगोनल के अक्रॉस कट कर दिया, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, मेन डायगोनल के अलोंग ऐसे कट किया, और दो ट्रायंगल बन गए मेरे पास। दो ट्रायंगल कौन कौन से बन गए, एक तो ये बन गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दो ट्रायंगल बन गए। इन द नेक्स्ट स्टेप वन ऑफ द कट ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट इट्स शॉर्ट एज। तो अगले स्टेप में मेरे को इसको शॉर्ट एज के अराउंड रिवॉल्व करना है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड कोन, द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन इन क्यूबिक यूनिट्स। कुछ नहीं था, सिंपल, कि मेरे को इसको क्या करना है, मान लो कि लेट अस सपोज मैं इस एज के अक्रॉस इसको रिवॉल्व कर लूंगा। ये जो है, ये वाली लाइन जो है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको मैं ओवरलैप कर दूंगा। तो ओवरलैप जब मैं इसके ऊपर कर दूंगा इसको, ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं इस तरह से जो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इस तरह का स्ट्रक्चर पे आ जाऊंगा सिंपली, इस तरह के स्ट्रक्चर में मैं पहुंच जाऊंगा फाइनली। नीचे मैंने बनाया भी हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ हुआ था जो हमने पहले कट डाउन किया, ठीक है। वो तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। इसका वॉल्यूम पूछा है कोन का, तो ये जब आप 1 1, जब ईच यूनिट 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये वाली चीज √2 निकल के आएगी, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये √2 आ जाएगी, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जब इसको आप कोन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाली चीज भी 1 है, और ये साइड में जो स्लांट हाइट है वो √2 है। फिर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। नाउ ट्रायंगल इज रिवॉल्व अलोंग द शॉर्टेज लेंथ फ्रॉम सॉलिड कोन, और आर क्या है, इसकी रेडियस 1 यूनिट हो जाएगी, और हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि एक इसकी रेडियस बनेगी, एक इसकी हाइट बनेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें आपने कुछ इस तरह का ऐड कर दिया, तो ये पूरी कोन बन जाएगी ना, ये हो गया। और ये चीज जो है आपकी, जो स्लांट हाइट है इसकी, वो क्या बन जाएगी, √2, और ये भी 1। तो बस कुछ नहीं करना फिर आपने, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी। आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप इसको उठाएंगे और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे। और आपको पता ही है कि जी कोन का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। कोन का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। एच कितना है, 1,
तो आंसर आपका निकल के आएगा जी π/3। आंसर आ जाएगा आपका π/3 यहाँ से, ठीक है। π/3 आंसर आ जाएगा आपका निकल के, ये आ गया π/3। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी होगी π/3 विच इज गिवन इन वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, अभी देख लेते हैं चल के इसको। ये रहा पहला ही ऑप्शन है आपका जी π/3, तो π/3 इज द करेक्ट आंसर। ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 9th 10th में आपने खूब मेंसुलेशन में चीजें करी है। बरखा का कुछ डाउट आ रहा है सर, एक साइड को दूसरी साइड पर लगाना है। हाँ यही है, दोनों फोल्ड कर देने हैं, बस आपने जो कट किया था ना डायगोनल कॉलम, उसको फोल्ड कर देने हैं। ठीक है, उसको फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये चीज बन जाएगी, जो हमारी जो उसकी स्लांट हाइट है वो √2 आ जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं 1 नहीं होगी भाई, √2 आएगी। फोल्ड करना है ना, आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो ना, क्या कह रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेप वन ऑफ द कट ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड, घुमाना है उसको शॉर्ट एज के अराउंड। ठीक है, एग्जैक्टली पेस्ट नहीं कर सकते आप, उसको घुमाना है आपने। जैसे देखो यहाँ से ये जो नीचे डायग्राम दिखाया हुआ है, लेट अस सपोज करो आप इसको लेके चलो। ठीक है, ये लेके चल रहे हैं हम, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो बीच वाला √2 आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर लिया, ये बन गया मेरा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी को घुमाओ ऐसे। ठीक है, इसी की एक मिरर इमेज बनाओ, तो कैसी बनेगी इस साइड, उसमें ये भी क्या होगा 1, ये क्या होगी √2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बरखा गुप्ता को समझ में आ रही है बात, ये √2 होगा उसके केस में। ठीक है, हाँ उसको घुमाना है सेम चीज को। ठीक है, जैसे आप ब्रेड की स्लाइड होती है ना सैंडविच, अगर उसके दोनों पार्ट को खोल दूं, वो साइड बाय साइड ऐड कर दूं बीच में से, तो इस तरह का आएगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो यहाँ पे जी आपका आंसर आ गया π/3 विच इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ गया π/3 विच इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी भाई फटाफट। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? जल्दी से कॉल करिए फटाफट अगर कोई डाउट है तो। कोई डाउट है किसी को? एनीवन? जल्दी। मैं चाह रहा हूं कि आपका जो 3-4 आवर का मेरा सेशन रहेगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट पे जो 55 क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, नो क्लियर है, चलो। और डॉक्यूमेंट आपको ये अवेलेबल रहेगा ही इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये एक तरह का डीआई टाइप का क्वेश्चन है आपको जो दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं यहाँ पे ना, तो ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो इसमें आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई मेरे पास ना इस तरह का एक डाटा दिया हुआ है। ये जो डाटा है कि हमारा जो डार्क बार्स है ब्लैक कलर के वो y है, और जो शेडेड बार है वो x है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो है ब्लैक वाले जो है वो हर किसी में क्या है, वो y है, और शेडेड वाले क्या है, x है हर किसी में। और इनकी वैल्यूज दिखाई हुई है वहां पे। ठीक है, वैल्यूज दिखाई हुई है सबकी कि कौन x है कौन y है। उसके बाद अगला डाटा सेट क्या कहता है, इसमें ध्यान से देखो आगे क्या बोलता है। नीचे पढ़ लेते हैं पहले इसमें क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है। द नंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ कहता है द नंबर ऑफ, हाँ ये कहता है क्या कि द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड बाय टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई एक्सरसाइजिंग एवरी डे, कि दो स्टूडेंट है एक्स और वाई डेली एक्सरसाइज करते हैं, और नंबर ऑफ डेज इतने स्पेंड किए हुए आपने मेंशन है इन अ गिवन वीक आर शोन इन द बार चार्ट अबव। ठीक है, बार चार्ट में दिखाए गए हैं, एक एक्स स्टूडेंट है एक वाई स्टूडेंट है, वाई वाला ब्लैक से शुरू है और शेडेड वाला एक्स से स्टार्ट है। The number of days in the given week in which one of the students spend a minimum of 10% or more than the other student on a given day. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पूरे वीक में कौन से ऐसे डे हैं जहां पे पहला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से या दूसरा स्टूडेंट पहले स्टूडेंट से 10% ज्यादा डे जो है यूज कर रहा है। ठीक है, 10% जो ज्यादा डे यूज कर रहा है, तो वो आपको छांटने हैं इसमें से कितने डेज ऐसे होंगे। देखो संडे की बात करते हैं। संडे में आप देख रहे हैं कि जो हमारा y है उसकी वैल्यू 65 है और जो x है उसकी 55 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10। तो ठीक है भाई, 10% या मोर पूछा है। ठीक है, मिनिमम ऑफ 10% मोर। ठीक है, स्पेंड अ मिनिमम ऑफ 10% और मोर, तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे तो काउंट होगा उसमें। अब सैटरडे पे आ जाते हैं। सैटरडे पे आप देखोगे कि जो हमारा x है वो 60 है और y जो है वो 50 है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो भी आपको 10 मिलेगा, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कम वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। मान लो 65 को कर रहे हो तो क्या करोगे, 10/55 जो चेंज आया इंटू 100,
ऐसे ही करोगे ना, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है? तो इसको आप करोगे तो ये निकल के जो आएगा 10% से ज्यादा आएगा, मतलब जो कम वाला है वो डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, और तब आप यहाँ पे अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, 10/50 इंटू 100, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप करोगे तो 60 ज्यादा हो गया इसके अंदर, सॉरी ज्यादा वाला नीचे आएगा ना, ज्यादा वाला नीचे आएगा, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 10 का बाय 60 इंटू 100। तो ये परसेंटेज आप कैलकुलेट करके देख सकते हो हर किसी के रिस्पेक्ट में ना। तो ये भी ज्यादा आ रहा है 10% से। ऐसे जब आप सबके लिए करोगे, अगले पे जाते हैं, फ्राइडे पे जाते हैं, तो फ्राइडे में भी क्या आ रहा है, देखो फ्राइडे में करके, फ्राइडे में क्या आ रहा है, फ्राइडे में 35 और 20, तो क्या हो जाएगा, 15 आ गया डिफरेंस बाय 35 इंटू 100। तो इसको भी आप करके देख सकते हो कितना आ रहा है ये भी आपका जो है 10% से ऊपर आएगा निकल के। ठीक है, जब आप ऐसे करते करते जब आप पहुंचेंगे ना थर्सडे पे, थर्सडे पे अगर आप देखें तो थर्सडे एक ऐसा डे है जहां पे क्या है, 60 माइनस 55/60, तो ये जो है 5/60 इंटू 100, ठीक है। इन दिस केस आपको ये संख्या जो है ये कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग। तो ये जो थर्सडे है ना, ये ऐसा डे है जहां पे डिफरेंस जो है 10% या उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर 10% उससे ज्यादा नहीं है तो ये तो गलत स्टेटमेंट होगी, अगले वाले में भी 10% या उससे ज्यादा है, इससे अगले में भी, इससे अगले में भी। तो थर्सडे को छोड़ के सारे ऐसे डेज हैं जिनमें डिफरेंस जो है दोनों के एक्सरसाइज करने का वो 10 या 10% से ज्यादा है। तो कितने डेज हो गए, अगर थर्सडे को हटा दूं एक वीक में से तो एक दिन चला गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 6। तो आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है गाइस सबको? ये सिंपल क्वेश्चन है, जो परसेंटेज आपको कराए सुमित सर ने, उसका सिंपल एग्जांपल है ये। टोटल से नहीं कर सकते ना डिवाइड, टोटल से नहीं करोगे आप, दोनों का कंपैरिजन करना है ना, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा उससे कम करोगे। ठीक है, ये दोनों में जो आएगा ना उससे डिवाइड करोगे। क्लियर है सबको? संदीप को भी क्लियर है? तो दोनों में आएगा ना उससे डिवाइड करोगे बॉस, इसको ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते आप। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से बोलो भाई फटाफट से। यहाँ पे नीचे करके भी दिखाया हुआ है ना हमने, यहाँ पे नीचे करके भी दिखाया हुआ है आपको सारा, ये देखो पूरा करके दिखाया हुआ है। डिफरेंट परसेंटेज क्या है, 10, तो 10 बाय आप करोगे इसको 65 और 50 का, तो 65 20% के आसपास आएगा। ऐसे करके देख सकते हो आप सारों का। ठीक है, तो खाली एक थर्सडे ऐसा डे निकल के आएगा जहां पे आपको ये 9 पॉइंट देखो दिख रहा है ना, इतनी परसेंट है ये। ठीक है ना? थर्सडे की जब आप बात करोगे, थर्सडे में आपको सिर्फ ये डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा, बाकी सब जगह ये सेम है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो हमारा आंसर हो गया इसका 6, विच इज गिवन इन वन ऑफ द ऑप्शन। तो 6 आपका सी है जी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा जो ब्रेन लगाने का था, थोड़ी सी ब्रेन इसमें अप्लाई होनी थी, और ये भी बड़ा सिंपल है, लेकिन आपने ये 10th क्लास में मेंसुलेशन में ऐसे बहुत क्वेश्चन करे होंगे अपने एलिमेंट्री क्लासेस में। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कॉर्नर्स, ये पहली बात तो क्या है, कि ट्राइंगल है, उसके अंदर हमने क्या किया, शेडेड रीजन है जो 3 साइड है उसको कट किया। तो अगर आप इस शेप पे जाएं जिसके अराउंड मैं अपनी लाइन को मूव करूंगा, आप देखना, अगर मैं इस शेप के अराउंड जाऊं ऐसे करके, सॉरी जस्ट मिनट, अगर मैं इस शेप के अराउंड जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि एक रेगुलर हेक्सागन बनता दिख रहा है, ये बीच में जो मैंने अभी शेड किया रीजन। ये बस बात आपको ध्यान रखनी है, एक रेगुलर हेक्सागन बनता दिख रहा है, और ऊपर ये आपका ये ट्राइंगल एक बनता दिख रहा है। अगर मैं ऐसे कट करता हूँ इसको, एक ट्राइंगल ये बनता दिख रहा है जी मुझे, और एक ट्राइंगल मुझे ये बनता दिख रहा है। ठीक है, ये बस इंफॉर्मेशन आपको देखनी है इस फिगर में से। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल टू प्रोड्यूस अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर्स मैंने कट कर दिए हैं टू मेक अ, ये जो पूरा जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था ये वाला बड़े वाला, ठीक है, जिसको मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसके कॉर्नर्स को मैंने कट कर दिया है, कॉन्वेक्स हेक्सागन जो बन गया, मैंने दिखा दिया हेक्सागन कैसे बना। अब आपसे कह रहा था रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि जो हेक्सागन बन रहा है उसके और जो रेगुलर मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल था उनके एरिया का रेशियो बताना है आपको।
तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ना। तो इसको अगर आप करने जाएंगे इस क्वेश्चन को, ये बड़ा सिंपल है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा आपको वो नहीं लगाना, हाई फाई ब्रेन नहीं लगना कुछ भी। इसको पहले बना लेते हैं हम अच्छे से, यहीं पे बना देता हूँ मैं, कोई इसमें बड़ी वो लगेगी नहीं एफर्ट जो है ना। तो पहले तो मैं इस फिगर को बना लेता हूँ, और इसमें क्या है कि आप देखोगे कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ है, ठीक है। जो रेशियो है इसमें इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड हुआ है, तो लेट अस सपोज जब पहली बार यहाँ होगा तो मान लो ये 1 यूनिट है मेरा, ये 1 यूनिट है, ये भी 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 1 यूनिट है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन कुड बी मेड इफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कट इनटू रेशियो 1:1:1। तभी तो मैं बना सकता हूँ ना हेक्सागन, जब 1:1 में कट करूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल को, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस तरह का मैंने बना लिया, ये रेशियो बन गया मेरा कट के। तो अब आपको पता चल गया कि इसकी अगर टोटल साइड में देखूंगा तो कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट्स, ट्रायंगल की 3 यूनिट है, ठीक है। 1:1:1 में लिया मैंने 3 यूनिट्स, तो ये इसकी जो है 3-3 यूनिट की साइड हो गई, ठीक है। और जब मैं इसको कट कर रहा हूं तो रेशो कितना आ रहा है, 1:1:1:1। यही बस इस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी। तो अगर मैं इसको रीजनरेट करूं, तो रीजनरेट कर लेते हैं इस ट्रायंगल को दूसरे कलर से, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पर टाइम स्पेंड करना पसंद करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने इसको रीजनरेट करने की शुरू करी, और मैंने इसको ऐसे रीजनरेट करा, देखना ध्यान से। एक ये थी लाइन, क्योंकि ये मुझे एक अच्छा क्वेश्चन दिखा इसमें जिसमें दिमाग लगना था। एक ये थी लाइन, ठीक है। थोड़ा साइड में बनाते हैं सो दैट कि हमें जो है समझने में आसानी रहेगी उससे, और थोड़े वैसे कलर से बनाते हैं। एक लाइन ये थी, क्योंकि इमेजिनेशन का क्वेश्चन है सिर्फ, ये कुछ नहीं है इसमें। एक लाइन ये थी, ठीक है, और एक लाइन ये थी। मैं ऐसी बना दे रहा हूँ अलग अलग कलर से, उसमें कोई घबराने आया उसकी बात नहीं है। ये बन गया मेरा एक ट्रायंगल जो मैंने बड़े वाला बनाया था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया। जो ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ से कट है ये, तो मैंने ऐसे कट कर लिया, एक कट मैंने ही लगा लिया, ठीक है। ये वाला जो है मैंने इसमें एक कट लगा लिया, तो एक कट मैंने यहाँ मार दिया ऐसे करके, ठीक है जी, मार दिया। और ये वाला तो है, तो मैंने एक कट ऐसे मार दिया, जस्ट रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको, और कुछ नहीं कर रहा, मैंने एक कट ऐसे मार दिया, ठीक है जी, मार दिया। एक कट ऐसे भी मार दिया, ठीक है ना, ठीक है, मार दिया एक कट, ये लग गए। तो आप देख रहे हो 1 2 3 ट्रायंगल तो ये बने। अब मैंने क्या किया, मैंने मिडिल में भी इसमें एक कट मार दिया और इसके डायगोनल अपोजिटली ज्वाइन कर दिए। तो मिडिल में भी मैंने क्या किया, मैंने एक कट मार लिया यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा एसिमेट्रिक बना है, दैट यू हैव टू बियर विथ मी। फिर मैंने ऐसे एक कट मार लिया, फिर मैंने ऐसे एक कट मार लिया, ठीक है। तो इस तरह से जब आप ये बनाएंगे तो ये आपके ट्रायंगल्स ही बनेंगे सारे के सारे। और जब मैं डिवीजन भी इसकी करूंगा तो 1:1 में डिवीजन होगी, क्योंकि 1:1 में ही था। तो नीचे से अगर मैं चलूंगा, और नीचे भी मैंने क्या किया, बीच में कट किया यहाँ से, लाइक दिस। तो यहाँ से मेरे ट्रायंगल बनने चालू हो गए, और जब मैंने इसको रेशो को निकाला तो मेरे पास ये 1:1:1 आया सारा। यहाँ पे बीच में एक कट 1:1:1:1 ये आ गए, जो मैंने इस वाले में बना के दिखाया था आपको। अब मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा ट्रायंगल ये ले लिया। लेट अस सपोज अगर मेरा ये ए बी सी था, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया बी सी डी, और उसके अंदर आपका ये एंगल 60 डिग्री का बैठेगा। आप करके देख लेना अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है। और ये बड़े ट्रायंगल के मैंने दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं ये, तो इनकी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है, ये आपको पता है। या आप ये कह सकते हो कि ये साइड प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, ठीक है, ऐसे ये साइड प्रोपोर्शनल टू दिस साइड। तो मैंने दोनों का रेशियो ले लिया। मैंने क्या किया कि ये जो बड़े वाली साइड थी ये रेशियो दिस, ठीक है, ये इन साइडों का रेशियो लिया मैंने, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ये रेशियो दिस, है ना। और नीचे वाली जो साइड है आपकी, ठीक है, ये वाली बीसी जो ये वाली साइड जो है, ये रेशियो दिस डीबी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लिखा AC, ठीक है ना। AC जो ये वाली साइड थी उसके रेशियो में क्या आएगा, ये आएगा CD इज इक्वल टू BC, ये बड़े वाली साइड जो थी BC, रेशियो इसकी क्या साइड है, DB, और इनकी वैल्यूज डाल दी। अब जो AB बड़े वाली साइड, AC जो बड़े वाली साइड थी वो तो 3 थी, और CD जो है मुझे नहीं पता, अभी मैंने निकालनी है वो।
और इधर क्या था, जो BC साइड थी मेरी, BC जो साइड थी वो भी कितनी थी भाई, 3 थी। और ये कितनी थी, 1, जो मेरी DB साइड थी, ये वाली साइड जो 1 थी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो जो CD है वो आपका आ जाएगा 1। बस मुझे इतना इसमें कैलकुलेट करना था। और जब आप इसको फिर कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपको दोनों का रेशो पुट करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर, जो मेन चीज है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसकी साइड कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया होता है √3/4 A²। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वो सारी चीजें आपके लिए। तो जो रेगुलर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है √3/4 A²। उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारा हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है। और दूसरे वाला जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया होता है √3/4 A², बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख लूंगा कि जो मेरा एरिया है, एरिया किसका, रेगुलर हेक्सागन का, वो कितना है भाई, √3/4। और हेक्सागन की साइड कितनी आ रही थी, 1। तो 1 का स्क्वायर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से। तो ये 6 टाइम्स हो गया। एक तो ये आ गया। और दूसरा एरिया किसका आ जाएगा, दूसरा एरिया निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ ओरिजिनल बिग ट्रायंगल, एरिया ऑफ, ठीक है, ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया आपको पता ही है, √3/4 A² होता है। उसकी साइड कितनी थी, 3। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, √3/4 से √3/4 कट जाएगा। ऊपर आपका 6 आ रहा था जो पिंक वाले में है, और नीचे आपका कितना आ रहा है, 9। तो रेशो कितना हो जाएगा, 2:3। तो रेशो आ गया 2:3। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया सबको कि रेशो 2:3 कैसे आया। दोनों को एरिया को डिवाइड कर दिया, बस ये समझना था कि कितनी साइड उसकी निकल के आएगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दी हुई है जो आपको आंसर में मिल जाएगी, ए ऑप्शन जो है 2:3 वाली। और ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया हुआ है आपके PDF में, तो वहां से भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से कॉल लो भाई। ठीक है, अच्छा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अब फिर हम आगे चल रहे हैं इसमें ना। ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे आप ज्यादा नहीं तो कम से कम, अगर मैं ज्यादा भी ना बोलूं तो आप ज्यादा नहीं तो 10 में से 7 to 8 क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर कर सकते थे अच्छे, और ठीक हो जाते। और ये सारा पार्ट आपको सुमित सर ने बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अलोंग साइड आप नेट JRF वाले बैच में भी पढ़े हैं, तो वहां पे भी सारा जो करवाया गया है आपको चीजें, एवरेज, परसेंटेज, उससे आप इजीली इसको कवर कर सकते हो, कोई टफ पार्ट नहीं था। ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप करूंगा और मैं अब आगे चल रहा हूँ। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सब्जेक्ट क्वेश्चन जितने हो सकेंगे अभी सेशन में। ठीक है। आई वुड ट्राई कि मैं कम से कम शुरू के 10 तो पहले कर लूं, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में हम आगे चल पाए उसके। ठीक है। तो अभी मैं आगे चल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। उसके लिए मैं दूसरी PDF एक रिकॉल करूंगा आपकी। ठीक है। या मैं करके ही दिखा दूंगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसका रिकॉर्ड को एक बार